How can you build interactive sales dashboard on Google Data Studio in less than 5 minutes? Hi there, I am Kevil Kishan, India's leading business automation coach. And today I want to train you on an amazing technology called Google Data Studio, using which you can create any business report like this. Now, before I train you on this, make sure you subscribe to the channel. Every week we are bringing valuable lessons to help you upgrade as a business owner. And every week we are conducting business automation masterclasses as well. The link will be given in the description. You can check it out. Let's discover now what is Google Data Studio and why it is so special, and how can you capture data from Google Sheet to Google Data Studio, and how can you build any dashboard, any reports. For all the users who are wondering केवल ये dashboard क्या चीज है, ये reports का मतलब क्या है, let me give you a glimpse. So our students are analyzing their team performance on this dashboard. It is called Google Data Studio Task Delegation Dashboard. कितने टास्क टीम ने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने टास्क कंप्लीट हो गए बट अभी डिलेड हैं, कितने टास्क पेंडिंग है, how many tasks are delayed and it has crossed the deadline. It is giving the employee wise task list. It is even telling which tasks are pending, which tasks are completed. Now this dashboard is capturing the data from a Google Sheet, and the owner of the company is able to analyze the employee wise performance in such a detail. And our students pan India who have all these systems, whenever they are doing the meeting with their team, they are just choosing the teammates from the drop down. For example, अगर मैं सैम को यहाँ पे चूज करता हूँ तो सैम की परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाती है कि ओके 103 टास्क कंप्लीट किए हैं, 2 टास्क डिलेड हो गए हैं, राइट, और ये है सैम की पेंडिंग टास्क की लिस्ट. सेम वे द कस्टमर कैन चूज, द ओनर कैन चूज एनी अदर टीममेट और एनी अदर एम्प्लॉयर एज वेल. Same way, our students pan India, how do they analyze the sales? They analyze using this dashboard. कितने clients हैं जिनका परचेज ऑर्डर आ चुका है, कितने बिजनेस अभी नेगोशिएशन स्टेज पे है, कितने प्रपोजल्स एक्चुअली किसी ऑर्डर वेंडर के पास जा चुके हैं, कितनी इंक्वायरीज अभी लीड स्टेज पे हैं, कितनी इंक्वायरीज अभी नेगोशिएशन स्टेज पे हैं, कितनी इंक्वायरीज ऑनलाइन क्लाइंट से आए हैं, सोशल मीडिया से आए हैं, BNI से आए हैं, किस टीममेट के पास कितनी इंक्वायरीज हैं, right? And then which teammate has got how much business which can be converted into the clients, right? Pan India किस city से कितना business आ रहा है, and even it has got a follow up dashboard as well. ये किस client से कितना follow up लिया जा रहा है by each and every employee. Now, before I train you, I wanted to just give you the glimpse. These are called dashboards. So as a business owner, you should have team performance dashboard. You should have finance dashboard. You should have sales dashboard, which tells you how many inquiries are there in the pipeline. You should have order tracking dashboard. कौन से orders आपके pending है, कौन से on time deliver हो रहे हैं, कौन से delayed हैं. You should have inventory dashboard. And dashboards और report से benefit क्या होता है कि आपका business control में रहता है. So imagine you're driving a car और कार पे एक dashboard है. It is telling you how much fuel is left, at what speed you are going. अब imagine कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं and you do not have a gearbox, you do not have clutch brake and speed, and you do not have a dashboard as well. So what will the car look like? It's like your employees are out of the car और वो धक्का दे रहे हैं और आप गाड़ी का बस स्टीयरिंग से बस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो. And that is what a business is without systems. A car without a dashboard, without any engine. That is a business without systems. चलिए आप ये देखते हैं कि हम बनाएंगे कैसे डैशबोर्ड. सो मेरे पास एक सैंपल डेटा है यहाँ पे जिसमें कुछ क्लाइंट लाइक एक सैंपल डेटा है यहाँ पे, लाइक ऑर्डर आईडी, किस डेट पे ऑर्डर प्लेस हुआ, विच कस्टमर ऑर्डर डेट, फ्रॉम विच सिटी, विच सेल्स पर्सन प्लेस एन ऑर्डर और गॉट द ऑर्डर, विच रीजन द सेल्स वाज डन इन, विच प्रोडक्ट वाज बॉट, विच कैटेगरी द प्रोडक्ट वाज इन, how many quantities were bought, at which price, and total revenue. Now, why this data is so clean? Because data is captured on Google Form and then it is coming on Google Sheet. अगर आप मैनुअली एक्सेल में एंट्री करते रहेंगे तो इनफैक्ट आपके सिटीज की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, आपके टीममेट्स की एंट्री सही नहीं आएंगी. बट गूगल फॉर्म पे क्या है, आपके पास ड्रॉप डाउन चेक बॉक्सेस होते हैं, तो एंट्री आपका टीममेट्स करेक्ट तरीके से कर सकते हैं. एंड गूगल शीट पे यू गेट द क्लीन डेटा without any spelling mistakes, without any errors.
और सबसे पहला स्टेप जो डेटा कलेक्शन है, वहां पे जो एरर्स मिस्टेक्स हैं वो आपको मिटिगेट करना है। बट इस डेटा पे मुझे रिपोर्ट बनानी है, बिकॉज इस डेटा पे देखोगे देयर सो मेनी रोज, राइट? आई कैन नॉट नो हाउ टू एनालाइज इट। देयर इज वन वे दैट आई कैन गो एंड आई कैन क्लिक ऑन इंसर्ट, और एक पिवट टेबल का ऑप्शन होता है जिसमें रिपोर्ट बना सकता हूँ। बट आज मैं आपको उससे बेटर ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, विच इज गूगल डेटा स्टूडियो। ठीक है, चलिए अब पहले ना इसे कनेक्ट कर लेते हैं गूगल डेटा स्टूडियो से, और फिर ये देखते हैं कि क्या रिपोर्ट में बना हुआ है यहाँ पे। ओके, सो कनेक्ट कैसे करेंगे? आई गो टू गूगल डेटा स्टूडियो, सो आई ओपन दिस data studio.google.com. That's it. And guess what? This comes under the Gmail package. अगर आप Gmail ID यूज कर रहे हैं @gmail.com, तो Google Data Studio is complimentary coming, with Gmail, Google Sheets and Google Forms. You do not need to pay Google for using this application. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने कुछ सिंपल डैशबोर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, Google Classroom, Firebase, YouTube Analytics, बट आपको सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे जाना है एंड यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट अ रिपोर्ट, राइट? सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, इट इज गिविंग यू द ऑप्शन, इट इज लोडिंग राइट नाउ। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं रिपोर्ट तो बना दूंगा, बट डेटा कहाँ से आएगा? डू वी नीड टू फेच डेटा फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स और फेसबुक एड्स? नहीं नहीं नहीं, आज सिंपल रखते हैं, हमें हमारे गूगल शीट का जो डेटा है वहां से एक अच्छी सी रिपोर्ट बनानी है, लाइक दिस, या फिर ऐसी एक अच्छी सी रिपोर्ट बनानी है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट यू कैन कनेक्ट द गूगल शीट विद गूगल डेटा स्टूडियो। सो आई विल चूज दिस, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ऑल गूगल शीट्स आर कमिंग हियर एंड owned by you, Google Sheets, or the Google Sheets which are shared with you are coming here. So यहाँ पे मैं सर्च करूंगा 6th। Give me a minute. So this is on this email address, this is on this. I think मुझे एक इस email address पे Google Sheet शेयर करना पड़ेगा जिस पे मैं Google Data Studio की रिपोर्ट बना रहा हूँ। So this data was on a different email address and this report is on a different email address. So I have an option of adding the data from this option, and I can choose Google Sheet here, and now I can choose here 6th. I can write let me see. Yes, while searching 6th, you can see 6 July sales data is coming here, and this is the file name. I simply choose it, and here it says that okay, it has one worksheet which is called data. So yes, I have one worksheet. If you've got other worksheets, it will be captured here, and then you need to choose which sheet has actually the data which you want to use. It is asking me, do I need to use the first row as headers? Yes, we need to do that, because here the first row is actually the headers. And we want to include hidden filter cells. Yes, we can do that. Let's click on add here. So now this data is getting connected with Google Data Studio. Got it? अब आप देखेंगे कि राइट साइड में ये डेटा आ गया है, जो यहाँ पे गूगल शीट में आपके पास कॉलम्स थे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, सिटी, सेल्स पर्सन, रीजन, all these have come up here in Google Data Studio as columns: category, city, customer name, order ID. And see the beauty of it, see the beauty, the smartness of Google, that it is giving you these signs as well. Category text होगा तो ABC आ रहा है, city ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया कि ये किसी लोकेशन का लग रहा है नाम, तो सिटी मतलब गूगल मैप का वो लोकेशन कैप्चर कर रहा है, डेट में कैलेंडर का वो साइन आ रहा है, राइट? क्वांटिटी में 1 2 3 आ रहा है लिख के। सो बेसिकली जो आपका यूनिट टाइप है, जो किस टाइप का डेटा है, वेदर इट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, वेदर इट इज सिटी और स्टेट और नंबर और टेक्स्ट, इट इज कैप्चरिंग इज ऑटोमेटिकली। लेट मी शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट? अब ये डेटा कनेक्ट हो गया है, अब रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। आर यू रेडी फॉर इट? टाइप एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड टू डिस्कवर कि गूगल शीट से गूगल डेटा स्टूडियो पे कनेक्ट करके कैसे ब्यूटीफुल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाए जा सकते हैं लेस देन 5 मिनट्स। लेट्स चेक इट आउट। पहले ही डिसाइड कर लेते हैं मुझे क्या एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के नाम दिए हुए हैं,
सेल्स पर्सन, सो बार बार नाम रिपीट भी हो रहे हैं, मारिया, मारिया, एंड्रयू। अब इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी है। पहला एनालिसिस जो मुझे रिक्वायर्ड है वो है सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस एनालिसिस। How can I analyze salesperson performance analysis from this Google sheet in Data Studio? Let's check it out. So for this, sales dashboard. For this, what I will do, I'll choose here salesperson. I'll click on this and I'll drag it here. Firstly, I'll go to the add a chart option. And I want to see on which graph I want to use for analyzing my business. So I think I would want to go for bar graph for analyzing the team performance. And I click on this and I drag it here. Got it? अब यहाँ पे जब ड्रैग किया तो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन है, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑर्डर डेट चूज कर रहा है, डेट रेंज में, विच इज ओके। उसके नीचे ये ना कस्टमर नेम जिसने चूज कर लिया है। So it is basically giving us the analysis of customers. I don't want customer analysis. I want salesperson analysis. So what do? I simply click on this, on the customer name, और उसकी जगह पे यहाँ पे I will search for salesperson. So I will replace the customer name with salesperson. So यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे कि salesperson आपके employees के नाम आ रहे हैं। But इस salesperson क्या एनालिसिस आ रहा है? क्या रेवेन्यू वाइज एनालिसिस आ रहा है कि किस कस्टमर सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया है, उसका टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो अब इसमें जो रेवेन्यू मेट्रिक है, जो नीचे मेट्रिक है, वहां पे लिख के आ रहा है रिकॉर्ड काउंट। सो बेसिकली अभी जो एनालिसिस आ रहा है कि किस सेल्स पर्सन ने कितने ऑर्डर्स लेके आया वो आ रहा है। आई डोंट वांट दैट। आई वांट हाउ मच रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। आई वांट दैट। सो व्हाट विल आई डू? आई विल क्लिक ऑन दिस एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई विल चूज रेवेन्यू। राइट, सो रेवेन्यू चूज किया है यहाँ पे और ऊपर हमने चूज कर लिया सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन इन द डायमेंशन एंड मेट्रिक में रेवेन्यू। एंड गेस व्हाट, नाउ वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली राइट एनालिसिस। सो गाइस, कांग्रेचुलेशंस, फर्स्ट एनालिसिस इज डन। नाउ हियर वी कैन सी, इफ आई होवर माय कर्सर हियर, Nancy has sold 1,04,242.34 business products. NA has done $93,848 sales. अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस डेटा को मैं आपको देता एंड आई वांट टू आस्क यू, आप मुझे बताइए कि NA ने या नैन्सी ने कितने डॉलर्स के सेल की है। तो इस डेटा को और इस रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए you might have ended up using a formula or some other complicated calculations. पर यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल एनालिसिस मिल गया है ऑन गूगल डेटा स्टूडियो। एंड ब्यूटी पार्ट इज कि जैसे ये डेटा में कुछ आप चेंज करोगे या और रोज नीचे आप ऐड होंगी तो ये डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट भी अपने आप रियल टाइम अपडेट हो जाएगी। एंड दिस इज द रीजन कंपनीज लाइक Whirlpool are using Google Data Studio and Google Workspace, right? 6 million MSMEs are using Google. तो पहला एग्जांपल ये रहा। टेल मी इन द चैट बॉक्स, हाउ डू यू फाइंड दिस? ओके, अब इसको यहां पे रख देते हैं, एक और एनालिसिस करते हैं। मुझे ये भी जानना है यहाँ पे जो कैटेगरी आ रही है हमारी, बेवरेजेस, ड्राई फ्रूट्स, कैंडी, सूप्स, सो कौन सी कैटेगरी ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया? मान लीजिए आप अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में 100 रुपए का बिजनेस करते हैं, राइट? 100 रुपए का आपने सामान बेचा, 100 रुपए में आपने 4-5 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स सब सेल कर रहे हैं। डू यू वांट टू एनालाइज कि इस मंथ कौन सी कैटेगरी में से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया है या ओवरऑल किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है, राइट? हम कभी एनालाइज ही नहीं करते इन चीजों को और हम मैक्रो लेवल पे सेल्स को देखते रहते हैं, अपनी टीम को पुश करते रहते हैं कि सेल्स का ऑर्डर लेके आओ। बट क्या आपने कभी एनालाइज किया है एक कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर सेल कर पाता है, या किस सिटी में कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, राइट? या कौन से प्रोडक्ट की ऑर्डर्स बैक टू बैक आते हैं, इवन अगर क्वांटिटी या आइटम का प्राइस कम हो बट उसके ऑर्डर्स बहुत आते हैं। वी डोंट एनालाइज दीज थिंग्स एंड दैट इज द रीजन आवर सेल्स बिकम अ चैलेंज। वी डू नॉट ग्रो इट। Understand, sales is not an art. Sales is a science. It's a number game. And using analysis, आप numbers की calculation को समझ सकते हैं और आप instead of running your business with the rule of thumb, you can take
strategic precise measures based on the analysis, and you can create your sales plan, give the targets to your team, and grow your sales, right? Last year versus last to last year, my company, we have grown our sales 4 times. 4 times we have increased our revenue because we analyze everything in our business. चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे कैटेगरी वाइज एनालिसिस करना है, कौन सा कैटेगरी कितना ज़्यादा सेल हुआ, कैसे करेंगे? तो सिंपली अब मैं यहाँ पे एड अ चार्ट पे गया और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, टाइम सीरीज, बार ग्राफ, गूगल मैप। आई विल गो फॉर दिस पाई ग्राफ। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे चूज कर लिया ऑप्शन और इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव ले रहा है, मुझे कैटेगरी वाइज एनालिसिस रिक्वायर्ड था, तो नीचे तो रेवेन्यू आ गया विच इज ओके, बट सेल्स पर्सन की जगह यहाँ पे मैं चूज करूंगा कैटेगरी, एंड गेस व्हाट, इट इज गिविंग यू द ब्यूटीफुल एनालिसिस। हैव अ लुक, इट इज शोइंग अस कि आपका जितना भी यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, राइट, 25% ऑफ द रेवेन्यू, right, is coming from beverages category, right? Then second is sauces, third is others, which is combination of everything except these categories, fourth is James, fifth is dairy products, sixth is dry fruits, seventh is canned meat, eighth is condiments, ninth is pasta, right? 10th is baked goods. आगे बढ़ते हैं, एक और एनालिसिस करेंगे बिफोर आई रैप इट अप। अच्छा, मुझे हमेशा ये होता है कि आप जब गूगल फॉर्म से एंट्री कर रहे हैं तो डेट टाइम में आपका कैप्चर हो जाता है, बट क्या यहाँ पे हम मंथली एनालिसिस कर सकते हैं कि मंथ ऑन मंथ बिजनेस का सेल्स ट्रेंड कैसा चल रहा है, राइट? किस मंथ पे कितना सेल हो रहा है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, कब सेल्स हाई गई, कब सेल्स लो गई, इवन ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन, वो सब कंपैरिजन कैसे होंगे? क्या हमें इस गूगल शीट में कुछ फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे? नो, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इवन इफ यू डू नॉट हैव अ मंथ कॉलम डेडिकेटेड, यूजुअली लोग क्या करते हैं, मंथ का कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं और फिर बोलते हैं केवल हमारी गूगल शीट हैवी हो गई। वेल, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू नहीं जाते हैं, अगर आपको वो राइट मेथड्स नहीं पते हैं, तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे। विदाउट एनी फॉर्मूला आपका जो डेट से मंथ में कन्वर्ट हो सकते हैं। जानते हैं कैसे हम मंथली एनालिसिस कर सकते हैं इस सेल्स के डेटा पे? सो व्हाट विल आई डू, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे ना नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी वो हाइट भी इंक्रीज करनी है इस रिपोर्ट की। सो आई कैन सिंपली गो टू पेज, आई कैन गो टू करंट पेज सेटिंग्स, और यहाँ पे स्टाइल में अगर मैं जाता हूँ तो हाइट यहाँ पे 900 पिक्सल दिया है, आई विल मेक इट टू 2000 पिक्सल, एंड गेस व्हाट, देखिए बढ़ गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इट्स वेरी सिंपल, सब चीजें इजी हैं टेक्नोलॉजी में। और याद रखिएगा 6 million MSMEs are right now automating their business on Google Workspace. By the way, guys, if you're loving the video, make sure you like it, make sure you subscribe the channel, right? Every week we are bringing valuable videos to you, right? And comment below which analysis or which report you want to build in your business. क्या आपको सेल्स की रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, या टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, या फाइनेंस की रिपोर्ट आप बनाना चाहते हो गूगल लीडर स्टूडियो पे? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब यहाँ पे मैं मंथली एनालिसिस क्रिएट करूंगा रिपोर्ट। सो आई विल क्लिक ऑन ऐड द ग्राफ, ऐड अ डेटा पे क्लिक कर दिया मैंने, ऐड अ ग्राफ। अच्छा, मुझे यहाँ पे टाइम सीरीज चूज करना पड़ेगा बिकॉज मंथ ऑन मंथ जो एनालिसिस और टाइम है, तो टाइम के लिए लाइन ग्राफ बेस्ट रहता है। सो यहाँ पे मैंने लाइन ग्राफ एक चूज कर लिया, और आप देखोगे लाइन ग्राफ में खिचड़ी पक गई है। खिचड़ी क्यों? बिकॉज डे वाइज यहाँ पे मुझे चीजें दिख रही हैं। ऑर्डर डेट आ गया, सही है, रेवेन्यू आ गया, तो किस डेट पे कितना सेल हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। बट ये तो पूरे साल के डेट्स यहाँ पे दे हुए हैं, इट विल बी टू मच, इजंट इट? क्या मैं इस डेट्स को मंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, वी कैन डू दैट। हाउ कैन वी डू इट? आई विल गो टू डायमेंशन, और यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, एंड टाइप में जो डेट दिया हुआ है उसकी जगह पे आई विल सिंपली चूज ईयर मंथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आई विल क्लिक ऑन ऑर्डर डेट, यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे टाइप में ऑप्शन आ गया डेट का, इसकी जगह इसको मैंने ईयर मंथ में कन्वर्ट कर लिया। देखते हैं क्या आता है। 3, 2 and 1, and guess what? The entire year's dates are clubbed into 12 months and giving you the total sales month on month basis.
मीन्स दिसंबर का सेल्स आपका $66,000 का था, आपका फरवरी का सेल्स $19,000 का था. बिफोर वी मूव फर्दर, कैन वी गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गूगल? Type eye opening, type clapping in the chat box if you find this lesson to be boom, eye opening for you. Right? So यहाँ पे देख सकते हो आप कि कैसे इतना ब्यूटिफुली ये मंथ ऑन मंथ हमें एनालिसिस मिल रहा है, एक कौन से मंथ पे कितना सेल हो रहा है. राइट? एक और एनालिसिस मेरे दिमाग में आ रहा है जो अगर आप चाहते हो तो मैं भी कवर कर देता हूं, एंड दैट इज कि यहाँ पे आप सिटीज देखो, किस सिटी में कितना सेल आ रहा है. लॉस वेगस, न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड, डेनवर. सो क्या हम गूगल मैप्स पे लोकेशन के थ्रू क्वांटिटी और रेवेन्यू ला सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट. लास्ट एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं इसको रैप अप करूंगा वीडियो को, एंड आई टेल यू इसमें आपको कैसे डेली रियल टाइम अपडेट आ सकता है आपकी रिपोर्ट का. देखिए, इंसर्ट पे जाते हैं, ऐड अ ग्राफ पे, और यहाँ पे गूगल मैप आपका आ गया, गूगल मैप, बबल मैप, एंड आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस, और ये आपका यहाँ पे मैप आ गया, गूगल का मैप. यूनाइटेड स्टेट्स आ गए. यहाँ पे आप देखोगे सिटी इसने कैप्चर कर लिया यहाँ से, और सिटी के साथ नीचे कलर डायमेंशन, साइज डायमेंशन में मैं मेट्रिक में ऐड करूंगा रेवेन्यू, कि रेवेन्यू के बेसिस पे साइज चेंज हो जाए सिटीज का, कि जो सिटीज में ज्यादा रेवेन्यू उसका बबल इंक्रीज हो जाए, और कलर में भी मैं यहाँ पे रेवेन्यू ही करना चाहूंगा. ओके, और स्टाइल में जाके मैं चूज कर सकता हूं कि कलर किस बेसिस पे देना. सो दिस इज वेयर यू कैन सी, आई थिंक अगर मैं सेटअप में जाऊं, size is good. I think color I can remove it. This is good. Yes. So अगर हम इसे प्रीव्यू करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि Google Maps का कंप्लीट एनालिसिस आ रहा है, एंड बेस्ड ऑन द बिजनेस डन इन ईच एंड एवरी सिटी, यहाँ पे आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस आ रहा है. यस, दिस इज गूगल मैप. सो अगर आप इंडिया में हो और आपका इंडिया में बिजनेस है, सो मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में कितने सेल हो रहा है आपको इस तरीके से पता चल सकता है. और यू नो, जो टॉप कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके ऑफिस में एक प्रॉपर एलईडी टीवी लगा होता है with the dashboard which is showing the real time sales. This is what it is all about. So अगर मैं edit पे जाता हूँ, I can increase it. ये देखिए कितना beautiful यहाँ पे analysis आ रहा है. Now, when I say interactive means कि आप यहाँ पे controls भी add कर सकते हो. For example, control means आपको यहाँ पे एक drop down list लगाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दिया और आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे रीजन वाइज ड्रॉप डाउन लगा दूं, तो ये ड्रॉप डाउन जैसे ही मैंने चूज किया, ये सेल्स पर्सन आ रहा है बाय डिफॉल्ट. इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन चूज रीजन. सो रीजन का ड्रॉप डाउन आ गया. आई कैन अगेन ऐड वन मोर ड्रॉप डाउन विच कुड बी डेट कंट्रोल. तो डेट का ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं और भी चीज ऐड कर सकता हूँ. मैं सिंपल स्कोर कार्ड ऐड कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, मुझे टोटल जानना है, टोटल सेल कितनी हो रही है बिजनेस के अभी तक, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे ऐड हो गया. राइट, टोटल मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि टोटल ऑर्डर अभी तक कितना प्लेस्ड हो गया है कंपनी में. सो क्वांटिटी भी यहाँ पे आ गई, रिकॉर्ड काउंट. इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट, स्टाइल में जाके आप इसमें भी देख सकते हैं कितने अभी आपको ऑर्डर्स आए हैं, कितना आपका रेवेन्यू आ गया है, एंड आई कैन ड्रैग इट डाउन, दिस. ये टोटल सेल है कंपनी की, इतने ऑर्डर्स आपको अभी तक आ चुके हैं. और यहाँ पे मैं सिंपली एक आई कैन ऐड अ टेक्स्ट हियर, and I can write here sales analysis dashboard. Okay, so we can increase its size. We can, change the background, change the theme, change the color. And how do you view it? Why clicking on this option called view?
Now this is the sales analysis dashboard which is ready. This was our raw data, and this is where we have created a report showing us किस रीजन में कितना सेल्स है. अगर मैं किसी एक रीजन को चूज करूंगा तो उस रीजन का ही सेल्स हमें दिखेगा. इट मींस वैसे तो 25% बेवरेजेस थे, बट नॉर्थ रीजन में, ओवरऑल नॉर्थ रीजन में 40% सेल्स तो बस बेवरेजेस का ही है. 117 ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं नॉर्थ रीजन में, और उसमें से $1,41,000 सेल हुआ है. और ये आपका सेल्स एनालिसिस है. नॉर्थ रीजन में ये सिटीज हैं जिनका ये आपका ओवरऑल सेल्स आ रहा है. आई नो राइट नाउ यू आर गोइंग ब्लोन ऑफ. नैन्सी नॉर्थ रीजन में काम करती है विद $1,04,000 सेल्स. माइकल इज ऑल्सो फ्रॉम दैट रीजन. अगर मैं सारे रीजन को फिर से चूज कर लूँ तो एनालिसिस विल कम बैक अगेन. यहाँ पे मैं कैलेंडर में डेट भी चूज कर सकता हूँ, किस डेट से किस डेट का सेल्स कहता है. नाउ यू कैन इवन स्केड्यूल इट. इफ यू गो टू दिस ऑप्शन कॉल्ड शेयर, इसके ड्रॉप डाउन पे जाओगे, यू कैन हैव द ऑप्शन ऑफ स्केड्यूल ईमेल डिलीवरी. तो यहाँ पे आप स्केड्यूल कर सकते हो कि डेली बेसिस पे 8 बजे आपको सुबह आपके ईमेल एड्रेस पे और आपके कपल ऑफ अदर टीममेट्स के ईमेल एड्रेस पे डेली ये रिपोर्ट आ जाए. तो आप उठोगे सुबह और आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल पे ये रिपोर्ट सामने होगा. 4,000 business owners pan India are getting these reports on their mobile. Why? Because they are part of our business automation community. They are learning with us. We are helping them. We are hand-holding them. You also can become part of our community. How? By joining our one of the exclusive business automation workshop. This week I'm conducting a free masterclass to help you discover on how can you also automate and scale your business, double your profits, run your business operations working 1 hour a day using Google Workspace and WhatsApp automation. Doesn't matter whether you're a technical person or not. Doesn't matter whether you're a organized business owner or unorganized business owner, whether you're a solopreneur, you're a manufacturer, trader, service provider, your background, your language barrier does not matter. हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी में बिजनेस को ऑटोमेट कर लिया. यस, गूगल फॉर्म्स को हिंदी में बना लिया. ऐसे बिजनेस ओनर्स जिनके एम्प्लॉयज इलिटरेट थे, इंग्लिश नहीं आती थी, वो भी फॉर्म्स में एंट्री कर रहे हैं और ओनर को पूरी रिपोर्ट्स आ रही हैं और व्हाट्सएप पे क्लाइंट्स को मार्केटिंग के मैसेज आ रहे हैं और पेमेंट के रिमाइंडर्स आ रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द कमिटमेंट, द एनर्जी, द रिक्वायरमेंट, द नीड दैट यू हैव टू डबल योर प्रॉफिट्स एंड टू ग्रो योर बिजनेस. आपका बिजनेस मोटिवेशन से ग्रो नहीं करेगा, ऑटोमेशन से ग्रो करेगा. Tell me, if you like this video, click on the like button and subscribe the channel as well. So इस particular feature से आप अपनी schedule कर सकते हो और डेली आपको email आ सकता है आपकी रिपोर्ट का, और अपनी client से, अपने teammate से आप शेयर भी कर सकते हो. And then there are so many other features which our students learn when they join our 8 weeks of workshop where we train them, guide them, enroll them. So guys, this is how easy it is, and this is how you can create interactive business analysis dashboard from Google Sheet within few minutes. I told you could create it in 5 minutes, but while explaining you, I shared with you multiple features, right? जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो 5 मिनट में आप कोई भी रिपोर्ट अपनी बना सकते हो. आज हमने इस रिपोर्ट में हम टीम का परफॉर्मेंस देख रहे हैं. इस रिपोर्ट में कैटेगरी वाइज एनालिसिस देख पाए. वी वर एबल टू एनालाइज मंथ ऑन मंथ एनालिसिस. वी आर एबल टू एनालाइज सिटी वाइज सेल्स फ्रॉम दिस डेटा सेट, which was not speaking, and now this is speaking. So as a business owner, you need sales, marketing, team management, accounts, finance, account receivable, account payable, inventory, order tracking, all the dashboards if you want to scale your business. Otherwise आप अपना डेटा ढूंढते रह जाओगे और रूल ऑफ थंब के थ्रू अपना बिजनेस चलाओगे without any precise measures, and one day things might go out of your hands. Tell me guys in the chat, in the comment box, what was your takeaway? What was the biggest takeaway of yours in this lesson? I hope you have liked the video. Make sure you share with your teammates, your clients, your vendors, your friends, because this will enlighten them on how important it is for you to analyze your business and how easy it is for you to build a report without any third party help. Easily आप अपने business को reports को बना सकते हो. With that, let me wrap up. Thank you so much. Keep learning, keep automating. Take care. Bye bye.